Hello student, I am Parul Siroi from ITS Engineering College and I am going to discuss Unit 1 of PPS. Let's start Unit 1, which is Introduction to Components of a Computer System and Idea of Algorithm and Basic Programming. Then we start with short question answer which carry each 2 marks. Then first question is define syntax. Write the importance of syntax in programming. Basically, syntax is referred to the set of rules that define the structure of symbols, words and statement in a programming language. For in simple words, syntax is the grammar of programming language. For example, we can write int a is equal to 10. It is the correct syntax. If we write a 10, this is the wrong syntax. Then we can follow the syntax. For example, we can write int a is equal to 10. If we miss the semicolon, this is the incorrect syntax. So that's why we can follow the rule of syntax. Syntax is the most important part in our programming language. Then second question is, draw the memory hierarchy according to the access time. Draw the memory hierarchy according to the access time. That answer is memory hierarchy represent the organization of different types of memory based on access time, speed, cost and storage capacity. We can show in the diagram. First one is magnetic tape. According to size, it is the higher capacity. Then after that, magnetic disk. After that, main memory, cache memory and register memory. जैसे जैसे इनका साइज डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इनका एक्सेस टाइम इंक्रीज हो जाता है. एंड जैसे जैसे एक्सेस टाइम इंक्रीज होगा फॉर डेफिनेटली श्योर स्पीड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड मेमोरी हियरार्की. सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज define tokens and it is used in programming language. तो first of all, what is the tokens? Tokens होता क्या है? तो tokens are the smallest individual unit of a program that are meaningful to the compiler or interpreter in a programming language. Basically tokens हमारे प्रोग्राम की सबसे smallest unit होती है जिनको यूज करके हम अपना कोई भी कोड लिखते हैं. तो there are types of tokens. Tokens are first one is keyword. तो कीवर्ड क्या होता है? बेसिकली रिजर्व वर्ड विद द प्री डिफाइंड मीनिंग. ऐसे वर्ड जो सी प्रोग्रामिंग में पहले से डिफाइन किए गए वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? कीवर्ड्स. देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देयर आर 32 कीवर्ड्स. फॉर एग्जांपल, वी यूज इफ. We use if. So what is the if? If is a keyword. We use else. What is the else? Else is a keyword. तो this is called keywords. यानी ऐसे वर्ड जो C प्रोग्रामिंग में पहले से डिफाइन किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे कीवर्ड. सेकेंड इज द आइडेंटिफायर. Second is the identifier. Name given to the variable, function, array, etc. is called identifier. For example, we declare some variable int sum. So what is the sum? Sum basically it's a variable, but what is the name of the variable? It is sum. तो वो sum क्या कहलाता है? हमारा sum क्या है? एक identifier है. यानी name of the variable is called identifier. Then third is constant. कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज द फिक्स वैल्यू दैट डू नॉट चेंज. यानी ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज नहीं कर सकते इज कॉल्ड कांस्टेंट. कांस्टेंट फॉर एग्जांपल वी कैन राइट इंट a 10. ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू नहीं है. अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो मैं a की वैल्यू किससे रिप्लेस कर सकती हूँ? 20 से रिप्लेस कर सकती हूँ. अगर मैंने इसको एक बार कांस्टेंट फिक्स कर दिया तो अब मैं a की वैल्यू चेंज नहीं कर सकती. अगर मैं a को प्रिंट कराना चाहती हूँ तो a की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, ना कि क्या प्रिंट होगा? 20. बिकॉज a क्या है? मेरी वैल्यू कांस्टेंट कर दी गई है.
तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, यानी एक बार अगर आपने कांस्टेंट किया तो दोबारा वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा देती हूं तो अब अगर मैं इस कांस्टेंट को इरेज कर देती हूं तो अब आप ए की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगी, 20 प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट इज ऑपरेटर। नेक्स्ट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, यानी ऐसे पार्ट आपके प्रोग्राम का जिसको आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हो, वो क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर। जैसे प्लस, प्लस क्या होता है हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर विच इज यूज्ड इन आवर program. Then special symbol. Special symbol is, for example, we can use curly braces, comma, parenthesis, ये सब क्या कहलाता है हमारा special symbol. Then 6 is string. String, basically string क्या कहलाता है, set of character, यानी multiple character is called string. For example, our name is called string, जिसको हम कैसे denote करते हैं, double quote के अंदर denote करते हैं। Next question is differentiate between low level language and high level language. So first of all, what is the low level language? Low level language is a programming language that is very close to machine hardware. It uses binary codes, assembly instructions that are difficult for human to understand. इसका मतलब होता है कि लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपका कंप्यूटर समझता है, यानी जो लैंग्वेज हम 0 या 1 की फॉर्म में लिखते हैं वो क्या कहलाता है हमारा मशीन लैंग्वेज। बट अगर मैं ये लैंग्वेज अभी भी यूज करूं तो ये बहुत मुश्किल है ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए, तो इसीलिए लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, दैट आर डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, राइटिंग एंड डिबगिंग प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कोड लिखा, 0101 की फॉर्म में कोड लिखा। अब आप सपोज करो मैंने 2 नंबर को ऐड किया, इसमें कुछ एरर आई, तो एरर ढूंढना जीरो, क्योंकि आपका जो सारा कोड है वो किस फॉर्म में है, 0101 की फॉर्म में, तो एरर ढूंढना 0101 की फॉर्म में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि राइटिंग एंड डिबगिंग प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बेसिकली जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम अपनी प्लेन इंग्लिश में लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, यानी इट इज अ मशीन इंडिपेंडेंट एंड अलाउ प्रोग्रामर्स टू राइट प्रोग्राम यूजिंग सिंपल लाइक स्टेटमेंट। यानी बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको हम इजीली, जो प्रोग्रामर्स होते हैं उसके प्रोग्राम को क्या यूज करके लिख सकते हैं, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। और इट रिक्वायर्स ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेशन इनटू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो हमारा कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। इसीलिए कंप्यूटर, और हमने ये कोड लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में अपना कोड लिखते हैं तो कंप्यूटर को तो हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। इसीलिए हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत सिर्फ हाई लेवल में पड़ती है, ना कि लो लेवल लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। मैंने अभी डिस्कस किया कि हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत सिर्फ हमें हाई लेवल लैंग्वेज में पड़ती है, ना कि लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज ऑलरेडी किस फॉर्म में लिखी गई है, 01 फॉर्म में, और हमारी मशीन यानी कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, 01 की फॉर्म में, तो इसलिए लो लेवल लैंग्वेज के लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर मैं बात करूं कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज की, तो वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में डिफरेंस बताना। तो फर्स्ट डिफरेंट क्या होता है कि ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस, यानी कंपाइलर क्या करता है, आपके पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके पूरे कोड को
एक पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट ना करके लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट आफ्टर कंप्लीट कंपाइलेशन, यानी जब पूरा प्रोग्राम आपका कंपाइल हो चुका है उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर बात करूं इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर में जो आपका एग्जीक्यूशन होता है वो इमीडिएटली लाइन बाय लाइन स्टार्ट हो जाता है। थर्ड इज डिस्प्ले एरर आफ्टर कंपाइलिंग एंटायर प्रोग्राम, यानी इसमें क्या होता है कि आपको एरर तभी दिखाई देगी जब आपका पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका होगा, लेकिन इसमें एरर आपको तभी के तभी दिखाई देगी जब आपकी एक लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन इसमें क्या होता है, फास्टर एग्जीक्यूशन, देन स्लोअर एग्जीक्यूशन। जनरेट सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल, डजंट जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी इसके अंदर आपको अलग से एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होगी, इसके अंदर आपके जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट नहीं होगी। इसमें रिक्वायर आपको मोर मेमोरी की लगती है, इसमें आपको लेस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। डीबगिंग करना डिफिकल्ट होता है कंपाइलर के अंदर, डीबगिंग करना इजी होता है इंटरप्रेटर के अंदर। देन फॉर एग्जांपल कहां पे हम कंपाइलर का यूज करते हैं, C++, और इसमें क्या करते हैं पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्लो चार्ट एंड इट यूज। बेसिकली फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं, सच एज रेक्टेंगल, डायमंड, एरो, ओवल यूज करते हैं स्टार्ट और एंड करने के लिए, रेक्टेंगल यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, और हमारा पैरेललोग्राम यूज करते हैं हमारा प्रोसेसिंग के लिए, डायमंड करते हैं कंडीशन के लिए। तो डिफरेंट सिंबल यूज करके हम अपना फ्लो चार्ट बनाते हैं। देन आता है कि यूज क्या होते हैं फ्लो चार्ट के, तो प्रोग्राम की प्लानिंग की, हमें अपने प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके लिए हेल्पफुल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, नेक्स्ट एरर डिटेक्शन करने में इजी हो जाता है। तो ये हमारा यूजफुल यूज होता है फ्लो चार्ट के लिए। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड सिंटैक्स एरर। बेसिकली एरर क्या होता है, तो एरर क्या होता है जब आप कोई भी लैंग्वेज को लिखने के लिए आप उसका सिंटैक्स फॉलो नहीं करते हो, यानी एरर कॉज्ड बाय वायलेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रूल्स। नेक्स्ट इज एरर कॉज्ड बाय रॉन्ग लॉजिक यूज इन द प्रोग्राम, यानी सिंटैक्स एरर तब आती है जब आप कोई सिंटैक्स फॉलो नहीं करते, और लॉजिकल एरर तब आती है जब आप कोई प्रोग्राम में लॉजिक गलत अप्लाई करते हो। ये एरर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों डिटेक्ट कर देते हैं, बट लॉजिकल एरर कंपाइलर और इंटरप्रेटर डिटेक्ट नहीं करते हैं। प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट अंटिल करेक्टर, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक करेक्ट ना हो जाए, बट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, बट किसके साथ एग्जीक्यूट होता है, रॉन्ग आउटपुट के साथ। नेक्स्ट इजी टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स। फॉर एग्जांपल अगर सेमीकोलन मिस हो गया, ब्रैकेट मिस हो गया, इसमें क्या होगा, प्लस की जगह आपने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमारा आता है लॉन्ग क्वेश्चन जो कि कैरी करता है 7 मार्क्स। First question is explain the storage classes for the storage of the data in C programming. Basically most important question आता है storage class क्या होती है। storage class basically बताता है किसी भी variable का scope, lifetime, storage location and variable and function in a program. There are several type of storage class which is automatic, register, static and external. There are 4 types. कीवर्ड क्या यूज करते हैं, ऑटो, स्कोप क्या होता है इसका, लोकल यानी विद इन द फंक्शन, लाइफ टाइम क्या करता है, ड्यूरिंग द फंक्शन, कहाँ पे स्टोर होता है, मेन मेमोरी के अंदर, एंड इनिशियल वैल्यू इज गार्बेज वैल्यू। देन सेकंड इज रजिस्टर, रजिस्टर के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं रजिस्टर। अब इसका स्कोप कहाँ होता है, विद इन द ब्लॉक, एग्जिस्ट करता है ड्यूरिंग द फंक्शन, मेमोरी लोकेशन इज सीपीयू रजिस्टर एंड इनिशियल वैल्यू इज गार्बेज वैल्यू। थर्ड इज स्टैटिक, कीवर्ड स्टैटिक, इसका स्कोप होता है लोकल और ग्लोबल, लाइफ टाइम पूरे प्रोग्राम के ड्यूरिंग रहता है इसका, और आपकी लोकेशन मेन मेमोरी और गार्बेज वैल्यू इसकी इनिशियल वैल्यू होती है। एक्सटर्नल के लिए कीवर्ड क्या यूज करते हैं, एक्सटर्न, इसका स्कोप पूरा ग्लोबल रहता है, एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मेन मेमोरी एंड आपका 0 होता है इनिशियल वैल्यू। देन सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिजिटल कंप्यूटर एंड प्रॉपर आर्किटेक्चर। First, what is the digital computer? A digital computer is an electronics devices that process data in digital form, which is 0 and 1. It accepts data as an input, process it and generate some output. Basically, we can show the architecture of a digital computer system. This is the architecture of digital computer system. First part is input unit, then storage unit, then central processing unit, then output unit.
फर्स्ट बात करते हैं इनपुट यूनिट क्या होती है, ऐसी यूनिट जिसकी हेल्प से हम इनपुट प्रोवाइड कराते हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर. Second is memory unit, store data, instruction and intermediate results. There are two types of memory, primary and secondary. Third part is central processing unit. CPU is known as the brain of the computer system. There are two parts, arithmetical logical unit and CU unit. Arithmetic logic perform arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication. Perform logical operation like and or not. Second part is control unit, controls and coordinator all operation of a computer. सारे कंप्यूटर के ऑपरेशन कंट्रोल करता है. डायरेक्ट डेटा फ्लो बिटवीन इनपुट मेमोरी एंड आउटपुट यूनिट, यानी सारा डेटा फ्लो जो किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम, कंट्रोल यूनिट की. नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट यानी ऐसी यूनिट जिसकी हेल्प से हम अपना आउटपुट देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर. Next question is define algorithm. Write the algorithm for the greatest of 3 number and draw its flowchart. Algorithm basically होता क्या? Algorithm is a step by step procedure to solve a given problem. फॉर एग्जाम्पल एल्गोरिथम, आप कोई भी कोड बनाते हो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं. आफ्टर डिजाइनिंग द एल्गोरिथम आप अपना कोड जनरेट करते हैं. तो एल्गोरिथम बेसिकली इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम. देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम. इनपुट स्पेसिफाइड होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 इनपुट होना चाहिए, सॉरी 0 भी इनपुट होगा या 1 भी इनपुट होगा तो चलेगा. सेकंड इज आउटपुट, यानी कोई भी आपने एल्गोरिथम डिजाइन किया उसका एटलीस्ट 1 आउटपुट आना चाहिए. डिफाइनाइटनेस, मतलब हर एक एल्गोरिथम जो भी आप डिजाइन करते हो मस्ट बी क्लियर, प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस. फोर्थ इज फाइनाइटनेस, यानी कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स उस एल्गोरिथम में होने चाहिए. इफेक्टिवनेस, यानी आपने जो भी एल्गोरिथम डिजाइन किया वो इफेक्टिव होनी चाहिए. देयर आर द एल्गोरिथम ऑफ 3 नंबर्स of greatest of 3 number. First start, we take 3 numbers A, B, C, comparison A greater than B and A greater than C. If condition is true, then greatest A. Then second condition we check B greater than A and B greater than C. If this condition is true, then we can say greatest number B. Next आता है last option is C. तो for example C is the greatest number. तो जो भी greatest number होगा display the greatest number and. Next question is write the fundamental data types used in C programming along with range, byte size and format specifier. So what is the data type? Data type specify the type of data that a variable can store in a program. कि कोई भी वेरिएबल किस तरीके का डेटा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा वो कौन स्पेसिफाई करता है, हमारा डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है. तो देयर आर मेनी डेटा टाइप्स, प्राइमरी, ड्राइव्स एंड यूजर डिफाइंड, बट वी आर डिस्कस विद प्राइमरी डेटा टाइप. फर्स्ट इज char which byte size is 1 byte and range -128 to 127 and format specifier is %C. Second is unsigned char, same 1 byte 0 to 255, format specifier %C. So that's why you can see the table and you can verify this. Next question is explain difference among assembler, loader, linker with suitable example. First is assembler. Assembler is also a translator which is used to translate assembly language into machine language. तो assembly language क्या होता है, हम as input assembly language लेते हैं. असेंबली लैंग्वेज एज इनपुट लिया, असेंबलर अप्लाई किया तो असेंबलर ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट कोड में. नेक्स्ट इज लिंकर. ए लिंकर कंपाइन्स one or more object files and library files into single executable program. That's why linker क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट फाइल को कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करके क्या बना देता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल. देन थर्ड इज लोडर. लोडर लोड्स द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इनटू मेन मेमोरी एंड प्रिपेयर्स इट फॉर एग्जीक्यूशन. एलोकेट्स मेमोरी, लोड्स प्रोग्राम इनटू रैम एंड स्टार्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. जो भी आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम आया है उसको लोडर किसको दे देगा, मेमोरी को दे देगा और मेमोरी उसको एग्जीक्यूट कर देगी. थैंक यू.